Hello everyone, good morning. Welcome in the topic polynomial. Let's continue the revision of polynomial in this session. So what I have done this time for the revision of the polynomial, I have divided the revision section into three sections. One is of course the simple revision. Of course, till 4 mark question we have got this till 32. Then we have few questions for HOTS. You can check that. These are the HOTS questions. Very few questions, not more. And then we have questions from deleted syllabus. If you wish to complete few questions from deleted syllabus, few questions from there also I have taken. Okay, so this is how we are completing the revision of polynomial. So let's continue. Let's start. Today we are completing 22 questions, and tomorrow, that is Sunday, I am expecting you to complete remaining 22 questions. So your revision of polynomial will be done within the 2 days. Remember, today is a holiday. I know that tomorrow is also the holiday, right? So in these 2 days, you can make a proper use of it. Not only mathematics, even for science, you can revise your 2 topics. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आई विल बी टेकिंग रिविजन, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिविजन ऑफ योर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यू हैव टू डू इट ऑन बाय योर सेल्फ. ओके, कीप दैट इन माइंड. तो कंटिन्यू विद रिविजन ऑफ बोथ मैथ्स एज वेल एज साइंस टुडे एंड टुमारो एज वेल. ठीक है, तो गेट इट डन. तो लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन फटाफट कंप्लीट करते हैं. इफ यू वांट आई विल revise a few concepts. What is deleted from your syllabus, I'll tell you, and what is there in your syllabus. The first thing, what is there in your syllabus, I'll tell you. Just zeros of the polynomial is there in your syllabus, and relation between zeros of the polynomial, that's it. So considering that, let me tell you, you have alpha beta, relation between alpha beta, alpha plus beta is equals to minus b upon a, alpha into beta is equal to c upon a. Basically there is more focus. And the polynomial using alpha and beta, that means the polynomial using zeros is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. So these two formulae, if you know, then your revision of this topic should be done. Okay, so keep that in mind. चलो, तो मैं क्या करता हूँ आपको रिवाइज करने के लिए. In the beginning I'll tell you the formula. Come on, let's understand that. So this is how we have the first formula, that is alpha plus beta is equals to minus b upon a, and alpha into beta is equals to c upon a. To solve few questions we need few formula like alpha square plus beta square का formula, which is equals to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. Very very important formula. Similarly we need alpha cube plus beta cube or alpha cube minus beta cube as well. That will be alpha plus beta into bracket alpha square plus beta square minus alpha beta. Alpha a cube plus b cube only. Last year we had this formula, right? And second formula we have polynomial using alpha and beta, so it is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. So these are the two formulae we have to complete your revision. That's it. ठीक है, तो we'll continue quickly. We'll start the very first question. Alpha and beta are the roots of the given polynomial, and then calculate alpha plus beta. Very clear. Alpha plus beta is minus b upon a. So for this particular question we have alpha plus beta is equals to minus b upon a. This is the formula. Minus b, in sense b is minus b here upon a. So answer is b upon a. Okay, so to confuse you with the sign, this kind of questions will be asked. Second question देखते हैं, which is based on the graph. Of course, graph का एक simple फंडा है. Whatever time it intersect x-axis, those many number of zeros this polynomial has got. 3 zeros, and these are the zeros. Suppose imagine this is minus 3, this is 1, and this is 7. So minus 3, 1 and 7 are the zeros of this polynomial. So simply that we have to understand. तो चलो देखते हैं in the second question what we have got. In the second question, quickly, in the given figure the graph of the polynomial p of is shown and calculate number of zeros. So number of zeros, how many time it intersect x-axis? Only one time, that is on 1. So that is nothing but the zero of this polynomial. 1 is the zero of the polynomial and only 1 zero it has got. ठीक है, so that's it. It's not a big deal. Come on, next let's go ahead. Calculate the zeros of the polynomial. Okay, zeros you have to find out. So how to find the zeros? देखो 4x square
minus 12x plus 9 we have here. So I have to split the middle term. So 9 4 is 36. 36 to split to get sum as minus 12. So 6 6 is 36. I can do that, and both with negative sign. So I'll get the answer. So 4x square minus 6x minus 6x plus 9. I can take things common, like 2x common. What is left here? I think 2x minus 3 and minus 3 common, 2x minus 3. So 2x minus 3 and 2x minus 3 are the factors, and if I make each factor equal to 0, I'll get the 0. So 2x minus 3 is equals to 0 किया तो 3 by 2. So 3 by 2 comma this also give you 3 by 2 are zeros. That's it. Clear? So that's how we have. तो easy है, कुछ ज़्यादा difficult नहीं है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. Fourth question. Sum of the zeros of the quadratic polynomial. This is 3. So properly read the question. Sum is 3. That means alpha plus beta is given equal to 3. Find the value of k for the following. ठीक है, तो कभी भी ऐसे मत लिखो 3 मत लिखो, डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिखो माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा 3 दिया है, यहाँ पे 3 लिखो. ओके, दिस इज द वे हाउ यू रिमेंबर इट. माइनस ऑफ माइनस के अपॉन ए इज 3. तो आई थिंक यू विल गेट योर आंसर. 3 3 9, के इज इक्वल टू 9. काम खत्म. दैट्स इट. ईजी है ना, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट वन 4 हो गया. 5 21 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. 20 में भी 20 to 21 क्वेश्चन. ठीक है. -1 is 0 of the polynomial. Calculate the other 0. -1 is a 0 of a given polynomial. Calculate the other 0. तो मुझे क्या लग रहा है, ये भी क्या देने की ज़रूरत है. ठीक है, x² माइनस 7x माइनस 8 है ना, तो डायरेक्टली इसको फैक्टर्स करके सेकंड 0 फाइंड करो ना. वाई अननेसेसरी. तो -8 टू स्प्लिट टू गेट -7. 8 इंटू 1 हो जाएगा. ये होगा -1 नहीं, ये होगा ये प्लस. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. x² माइनस 8x प्लस x माइनस 8. तो स्प्लिट करो. x कॉमन x माइनस 8 प्लस x 1 कॉमन x माइनस 8. तो आई हैव x प्लस 1 एंड x माइनस 8. तो -1 एंड प्लस 8 आर द जीरोज. तो ये 0 हो गया. दैट्स इट. इट्स नॉट अ बिग डील, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. 6 1. इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दीज आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा. ठीक है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अल्फा. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप हम लोग यूज़ करना है. कौन सा वाला? अल्फा प्लस बीटा यूज़ करो या फिर अल्फा इंटू बीटा यूज़ करो. अभी ए किस पोजीशन पे है? सी पे है, तो अल्फा इंटू बीटा वुड बी बेटर ऑप्शन. तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या बोलता है हमें? सी अपॉन ए है. अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू सी. सी क्या है? 2a अपॉन ए. ए इज़ 1. मैंने बहुत बार ऐसे देखा कि बच्चे यहाँ पे x² लिख लेते हैं. बहुत फालतू, मतलब एकदम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे. आई एम रियली नॉट लाइकिंग दैट. x² लिखते हैं अपॉन x². यहाँ पे ऐसे x² लिख लेते हैं और फिर दे डोंट एबल टू फाइंड द आंसर. कैसे मिलेगा आंसर? कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट. ठीक है, ओके. एंड देन कभी कभी ऐसे करते हैं, ये 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं. 2a है ना, तो उसका a का कोएफिशिएंट 2 सिर्फ 2 लिखते हैं और फिर बोलते हैं a ही नहीं है यहाँ पे. एंड दे डोंट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ये सिली मिस्टेक्स होते हैं डायरेक्टली एग्जामिनेशन में, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एनीवे अल्फा एंड अल्फा गेट कैंसिल. 2 इज इक्वल्स टू 2a, a विल बी इक्वल टू 1. ये हो गया आपका सिंपल आंसर. a इज इक्वल्स टू 1. फिनिश्ड. दैट्स इट. फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. चलो कमन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फटाफट करते हैं जीरोज. तो x² माइनस 2x, तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x कॉमन निकाला x माइनस 2. ये अब फैक्टर्स करना है ना, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2. तो इसका मतलब क्या आ गया? देयरफॉर 0, 2 आर जीरोज. फिनिश्ड. क्या दिखाऊँ मैं इसको? ये इंटरेस्टिंग है. चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं. इसको रूट निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरोज निकालना है. चलो ठीक है. तो 3x² माइनस 8x प्लस 4 √3. तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 4 3 12 हो गया, राइट. √3 इंटू √3 इज 3, 4 इंटू 3 इज 12 एंड आई एम गोइंग टू गेट दैट पार्ट विथ -8. तो 4 3 नहीं,
6 टू ज़ा, ठीक है, एंड द साइन विल गो टू 6. तो वी हैव हियर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 4 रूट 3. कुछ तो गड़बड़ है. साइन में गड़बड़ है क्या, क्या समझ में नहीं आ रहा है. ओके, -6x, ठीक है, ये माइनस, हाँ -8 कैसे आएगा, सॉरी बोथ तो माइनस साइन, देखो ऐसे हो जाता है, ठीक है, बोथ माइनस साइन, ठीक है ना. तो चलो कंटिन्यू करते हैं. इसमें से व्हाट कैन बी टेकन कॉमन. नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ x कॉमन निकलेगा क्योंकि बाकी हमें दिखता ही नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट 3 भी कॉमन निकलता है. अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू नो दिस कॉन्सेप्ट. रूट 3 भी कॉमन निकल जाता है. अभी रूट 3 कैसे कॉमन निकलता है, 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 एंड ये हो गया रूट 3 इंटू 2, ठीक है, ये रूट 3 तो कॉमन निकल सकता है. तो व्हाट इज लेफ्ट इज नथिंग बट 2 रूट 3. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. 2 रूट 3 नहीं, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे रह जाता है, ठीक है, सॉरी. रूट 3 एक्स निकल गया, x माइनस 2 रूट 3 रह गया यहाँ पे, -2 कॉमन निकल गया, x माइनस 2 रूट 3 रह गया, ठीक है. तो व्हाट वी हैव हियर इज नथिंग बट रूट 3 x माइनस 2 and in the other bracket x minus 2 root 3. So what are zeros? Therefore zeros are 2 upon root 3 and 2 root 3. I think that's the answer. Okay, is this clear? Got it? तो बिल्कुल भी एरर नहीं करना, मिस्टेक नहीं करना. कमन आगे बढ़ते. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros are 6 and 9. तो अल्फा प्लस बीटा इज 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 9. तो हमारा फॉर्मूला क्या है पॉलिनोमियल बनाने का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो वी हैव हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. बहुत सिंपल है. फाइंड जीरोज एज वेल. नाउ ये अनदर कॉन्सेप्ट है, आप किसको जीरोज भी फाइंड करना है. जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, इसको फैक्टराइज करके. 9 टू बी फैक्टराइज टू गेट -6. ओके, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस, ठीक है. तो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. तो वी हैव x कॉमन, x माइनस 3, वी हैव 3 कॉमन, सॉरी -3 कॉमन, x माइनस 3. तो x माइनस 3 3 and 3 आर द जीरोज एज वी सी देयर, ठीक है. अभी मैं फैक्टराइज नहीं करूँगा, अभी आपको खुद से करना पड़ेगा. 10th क्वेश्चन दिखाते हैं हम लोग. 10th क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट. मतलब वही दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन दैट इज 21/8 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन दैट इज 5/16. तो वी हैव द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट. तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 एक्स प्लस 5/16. तो वी कैन टेक LCM ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो वी हैव 16 इज LCM, तो इंटू 2 यहाँ पे इंटू 16 करना पड़ेगा. 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 21 इंटू 2 42 एक्स अपॉन 16 प्लस 5/16. तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/16 इंटू ब्रैकेट 16 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 एंड दैट्स द आंसर, ठीक है. इज सिंपल, नॉट डिफिकल्ट. Directly without doing this also if you write, it is a correct answer. लेकिन as we have MCQ this time, so you should have all the form of answers ready with you, ठीक है, remember that. तो next one is nothing but quadratic polynomial. These are the sum and product. तो sum is 3, सेम ही है, कर लो अभी, है ना. चलो नेक्स्ट करते हैं. m and n are the zeros, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू m, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्वेश्चन, एंड बीटा इज इक्वल्स टू n, अल्फा एंड बीटा. ओके, ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. ओके, ये पॉलिनोमियल दिया है. तो हमें क्या पता है पॉलिनोमियल के बारे में, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए विच इज़ -11/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए विच इज़ -4/3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन पॉलिनोमियल. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस वन, m अपॉन n प्लस n अपॉन m, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन mn के लिए तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना. m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा मतलब m प्लस n द होल स्क्वायर माइनस 2mn. याद करो फॉर्मूला,
एम एन, एम प्लस एन क्या है -11/3, तो 121/9 स्क्वायर किया तो -2 एम एन, -2 इंटू एम एन, तो ये हो जाएगा +8/3 अपॉन एम एन इज -4/3। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना इज नॉट अ बिग डील, इंटू 3, तो ये हो जाएगा 121/9 + 8 3 = 24 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय -4/3. This is going to be 145/9 into 3/4. Of course, sign will remain minus. So 3 1s are 3 3s are 9, 12. 145/12 and sign will be minus. So your answer is 145/12 and minus sign. Yeah, it is the correct answer. You can check that. Your formula is very very important. So this formula is for a square plus b square या फिर alpha square plus beta square. Remember this formula. So many times we are going to use it. Okay, in this session as well as in the topic polynomial and even in the trigonometry we have used this formula. ठीक है, आगे बढ़ते 12 हो गया, 13 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट। देखो एक पेज तो हो ही गया, इतना इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। पी एन की और द जीरोस, फाइंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वही है देखो अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बहुत बार यूज़ करेंगे हम लोग, तो याद हो जाएगा पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर -2pq। ठीक है, तो पी प्लस क्यू मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो p प्लस क्यू इज नथिंग बट -b अपॉन माइनस ऑफ -7, तो +7/2 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 3/2। तो पुट कर दो वैल्यू, p प्लस क्यू तो होल स्क्वायर तो 49/4 -2pq, तो 2 इंटू पी क्यू तो 3 या फिर 6/2, 3/1 कर देते, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ठीक है ना। तो इंटू 4 तो वी हैव डिवाइडेड बाई 4 एंड 49 - 12, तो ये हो जाएगा 37, हो गया, दैट्स इट, 37/4 एंड वही आंसर है। ईजी है, बिल्कुल भी ईजी है, कुछ नहीं है। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कभी हमने किया नहीं है क्वेश्चन, बाकी तो हमने ऑलरेडी वैसे भी किए थे। कंडीशन दैट जीरोस आर टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स इफ अल्फा इज इक्वल्स टू मे बी क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, कंसिडर करेंगे के, चलो अल्फा इज इक्वल टू के, देन बीटा विल बी इक्वल टू 1/k होता है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसा हो तो हमें कौन सा कंडीशन मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा वाला कंडीशन मिल जाएगा, विच विल कैंसिल द के, इजंट इट, इज इक्वल टू c/a। और इज अल्फा के, और इज बीटा 1/k। ठीक है, इधर के मेरा और है, ओके, इज इक्वल टू c/a, के गेट कैंसिल, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू c/a, और दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू c। तो अगर a एंड c इक्वल है, ए एंड सी कैसे है, इक्वल है, तो क्या आता है, हमेशा रेसिप्रोकल आता है एक दूसरे का। जो जीरो आता है वो हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। कमान 15th क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया आपको, जीरो है, 9th वाला क्वेश्चन है। p ऑफ x इज इक्वल टू kx² -4x प्लस के, हम 9th का पार्ट भूल जाते हैं इसलिए ये क्वेश्चन बीच बीच में आता है। तो -1 पुट किया तो k इंटू -1 द होल स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस के शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है k प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -2 एंड दैट्स इट। वही आंसर है, देख लो, यही होता है प्रॉब्लम कि आप लोग 10th में जाते हो और 9th का भूल जाते हो। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर बीच में आ गए तो हमें पता ही नहीं चलता एग्जाम में करना क्या है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट वन 16, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, वो नीचे आंसर दिया है, ये जो दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा हमें फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/, मतलब 4√3, ओके, माइनस ये इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज 3/c/, तो दैट इज 3। तो अरे डायरेक्ट आंसर ही आ गया बहुत ही सिंपल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, 1-2 मार्क का ही क्वेश्चन ही है। कमान हरिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखा कितना हॉरिबल क्वेश्चन है। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दे आर द जीरोस, मतलब क्या, x² प्लस ax प्लस b हैज़ a एंड b एज अ ज़ीरो, यही जीरोज है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब क्या है, ज़रा ठीक से देख लो, मतलब ये है इसका
कि इसके कोएफिशिएंट ही इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आता है, व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। ये इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा लूँगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू सी मतलब बी बी गेट कैंसिल, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 मैंने इसमें पुट कर दिया तो बी विल बी इक्वल टू -2 आएगा। पुट करके देख लो, दैट्स इट, आई गॉट ए एज 1 एंड बी एज -2, है ना। मस्त क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। देखने के लिए एकदम सिंपल लगता है लेकिन सॉल्व करने में ज़बरदस्त। देखो फिर से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 18th क्वेश्चन में देखो, 18th क्वेश्चन देखो फटाफट हम लोग कितना फास्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन 18th क्वेश्चन वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ऑफकोर्स 40। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब 6 -6 का माइनस साइन, सो 6 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इज इक्वल टू 40। अभी ये तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लोग के फाइंड करेंगे, 36 आएगा, ये 36 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40। फाइंड करो यार, अभी इसके आगे तो मैं नहीं कर सकता, बहुत हो गया, कितना करूँ। चलो आंसर आ जाएगा आराम से, इजंट इट। वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, दैट मीन्स एक का अगर जीरो पॉजिटिव है दूसरा उसी का नेगेटिव है, दैट मीन्स इफ अल्फा इज इक्वल टू ए है तो बीटा इज गोइंग टू बी माइनस ए, ये बात समझ लो। तो अकॉर्डिंगली आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दो फॉर्मूले पुट कर सकते हो, हमें माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दोनों में से एक कर सकते हो या फिर दोनों कभी कभी करने पड़ते हैं, रिमेंबर दैट इस केस में। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि ए माइनस ए जीरो हो जाता है। तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मतलब 42 के स्क्वायर अपॉन 14। देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 42 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 42 के स्क्वायर, एक्स इज वेरिएबल, बाकी सभी कोएफिशिएंट होता है तो अपॉन 14। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 42 के स्क्वायर अपॉन 14, ठीक है। तो सब कुछ इधर शिफ्ट हो गया तो 0 हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 हो गया, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो है वैसे ही आंसर सारे। फटाफट करो, कंप्लीट करते हैं। 20th क्वेश्चन, मे बी 2 क्वेश्चन लेफ्ट। 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये सिंबल है लैम्डा। पी ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये मत भूलना है इज इक्वल टू 0 करना, क्योंकि वो क्या है, 0 है। तो रिमेंबर दैट एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर। तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर, ठीक है। फिर भी मैं करता हूँ, ये आएगा 1/2 1/4 इंटू 2 1/2 प्लस 3/2 विच कैन गिव यू 4/2 विच इज 2, लैम्डा इज इक्वल टू -2, दैट्स इट। ओके, एंड द अदर 0, ओके आपको अदर 0 भी फाइंड करना है। तो लैम्डा मेरा क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। लैम्डा एक बार -2 आ गया तो मैं इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 करूँगा और इसके बाद सारे जीरोस फाइंड करूँगा। एक आएगा 1/2 ऑफकोर्स विच इज़ हियर एंड दूसरा आएगा -2 अगेन, तो दैट्स व्हाट द आंसर इज। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फैक्टराइज करो, जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करना जरूरी है। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा। 21st क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9 दिया। अल्फा माइनस बीटा का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूँ। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए मतलब 1 बराबर है 1, राइट है ना, 1। एंड अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड करता हूँ। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, के, सॉरी माइनस के। अभी देखो, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा माइनस बीटा इज 9। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन जैसे इसको सॉल्व करना है। देखो यही है टेक्निक, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो लीनियर इक्वेशन जैसे यूज करना है। इसको ऐड किया तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 5 आएगा। वन साइड राइट अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा विल बी इक्वल टू -4 आएगा। If I substitute this alpha is equals to 5 in this equation, beta is equals to -4 आएगा. Now you tell me alpha and beta, if I alpha value and beta value if I put into this equation, isn't it I'm going to get -20 is equals to -k or k is equals to 20, and that is what the answer is.
देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, बहुत कम पार्ट रह गया है अभी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ, वीडियो विल बी टू लॉन्ग अदरवाइज। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको आज क्या क्या कंप्लीट करना है, ये 21 क्वेश्चन तो आप लोग कंप्लीट करोगे ही, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। एट द सेम टाइम 32 क्वेश्चन तक आपको आज कंप्लीट करना है, जस्ट टू मेक इट श्योर दैट यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ऑल 32 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करते हैं आज के आज ही, टुडे इटसेल्फ। ठीक है, तो आई एम जस्ट होपिंग दैट यू ऑल कंप्लीटेड। टुमारो आई एम टेकिंग टिल 42, till 41, okay, till 41. That means all HOTS question also will complete tomorrow in tomorrow's video. Tomorrow is Sunday, still I am sending the video for your revision. Thank you so much, bye bye, see you tomorrow.